Our example number first is among the following compounds which one has the shortest CCl bond। हमें इसमें बताना है किसका CCl बॉन्ड सबसे शॉर्टेस्ट होगा। ओके बच्चों, देखिए इन विनाइल क्लोराइड CCl bond is shortest due to resonance of lone pair of Cl chlorine atom in vinyl chloride CCl bond is shortest due to resonance of lone pair of chlorine atom। ओके बच्चों, ड्यू टू resonance CCl bond acquire partial double bond character। Due to resonance CCl bond acquire partial double bond character। ओके बच्चों, hence we can say that hence vinyl vinyl chloride have shortest CCl bond length। ओके बच्चों, 1 मिनट। ये हमारा बच्चों विनाइल क्लोराइड है, ठीक है। क्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर है, ठीक है। ड्यू टू विच विनाइल क्लोराइड हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ओके, CCl है partial bond character। In vinyl chloride, CCl bond is shortest due to resonance of lone pair of chlorine atom। Okay, due to resonance, CCl bond acquire partial double bond character। Hence, we can say that vinyl chloride have shortest CCl bond length। Okay, बच्चों, जो हमारा विनाइल क्लोराइड है इसमें CCl बॉन्ड शॉर्टेस्ट होगा। क्यों होगा? ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ क्लोरीन एटम। ओके, ड्यू टू रेजोनेंस CCl बॉन्ड एक्वायर partial double bond character। Okay, hence we can say that vinyl chloride have shortest CCl bond length। Here our right answer will be option number B is correct। Okay, vinyl chloride has shortest bond length। Our example number 2 is which of the following compounds will form the precipitate with aqueous AgNO3 solution most readily। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए, all given species in the
in the 1 minute, all given species in the question are alkyl halide. ओके, सभी स्पीसीज क्या है, alkyl halide है. they react with aqueous AgNO3 solution with different rate. क्लियर बच्चों? रिएक्शन undergoes as follows. देखिए, ये हमारा एल्किल हाइलाइड है. जब रिएक्ट करेगा AgNO3 एक्वस से, ठीक है, इन प्रेजेंट ऑफ RDS, it gives carbocation plus AgX precipitate. Okay, precipitate. Hence rate precipitate formation of AgX depend on stability of carbocation. Okay, hence rate precipitate formation of AgX depend on stability of carbocation. Okay, जितना ज्यादा हमारा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा उतना ज्यादा प्रेसिपिटेशन होगा विथ एक्वस AgNO3 सॉल्यूशन. ओके, क्वेश्चन में जो हमें एल्किल हाइलाइड गिवन है, जब उसको हम AgNO3 से पास करेंगे, ठीक है, विथ एक्वस AgNO3, तो कार्बोकेटायन क्या फॉर्म होगा? इन द गिवन क्वेश्चन all formed carbocation will be, देखिए, फर्स्ट हमारा कार्बोकेटायन कुछ ये फॉर्म होगा, ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट कार्बोकेटायन. ओके, सेकेंड कार्बोकेटायन इज, यहाँ पे हमारा OCH3, इससे एक हमारा नाइट्रोजन अटैच है, ठीक है, ये हमारा कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया B. ओके, सिमिलरली चलिए हम C देखते हैं. दिस इज आवर थर्ड कार्बोकेटायन. ओके,
among the above given options carbocation A is more stable due to stronger प्लसियम इफेक्ट. ओके, इसमें जो है जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है इसमें स्ट्रॉन्गर प्लसियम शो कर रहा है. ओके, स्ट्रॉन्गर प्लसियम. सो ये कार्बोकेटान हमारा क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा. मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटान. ओके, so here we write among the above given options carbocation A is most stable due to stronger प्लसियम effect. So give precipitate with aqueous AgNO3 solution most readily. Okay, among the above given options carbocation A is most stable due to stronger plasma effect. Okay, so given precipitate with aqueous AgNO3 solution most readily. So our right answer will be option number A is correct. Okay, ये हमारा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटान बनेगा. ठीक है, ड्यू टू स्ट्रॉन्गर प्लसियम इफेक्ट. ये हमारा कंपाउंड मोर रेडली जो है प्रेसिपिटेट देगा विथ एक्वस AgNO3 सॉल्यूशन. और एग्जांपल नंबर 3 इज the decreasing order of reactivity of the following compounds towards nucleophilic substitution SN2 is. हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड बताना है टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके, SN2 रिएक्शन. देखिए बच्चों, जो हमारा रेट ऑफ SN2 रिएक्शन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन. सो हियर वी राइट rate of SN2 reaction is inversely proportional to stability of carbocation. Okay, stability of carbocation. ओके बच्चों, एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटान स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटान stability of carbocation is inversely proportional to minus I minus m effect. Okay, and directly proportional to stability of carbocation is directly proportional to plus I and plus m effect. ओके बच्चों, तो चलिए हम देखते हैं
देखिए जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है, फर्स्ट कंपाउंड बना लेते हैं पहले। यहाँ पे हमारा CH2 है, ठीक है, CH2 से अटैच Cl है, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे ये हमारा माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, Cl, ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। So here we write minus I effect, ओके। ये हमारा फर्स्ट है ऑप्शन, ठीक है बच्चों। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। यहाँ हमारा NO2 अटैच है, एक NO2 यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा CH2Cl, ओके। देखिए यहाँ पे Cl हमारा माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ हमारा कार्बोकेटायन बनेगा, फिर अब Cl निकलेगा, ठीक। देखिए ये जो हमारा NO2 है, ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और ये NO2 भी माइनस आई इफेक्ट, सॉरी माइनस एम इफेक्ट, ओके। तो हियर वी राइट माइनस एम एंड माइनस आई इफेक्ट, ओके। तो बच्चों इसमें हमारा डिस्टेंस डोमिनेंट होगा, डिस्टेंस डोमिनेटिंग ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। ये हमारा Cl माइनस आई शो कर रहा है, यहाँ पे हमारा NO2 है, यहाँ पे हमारा NO2 है, ओके। ये हमारा माइनस एम शो कर रहा है, ये भी माइनस एम। तो इसमें कौन कौन से इफेक्ट होंगे, माइनस एम इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट, ओके बच्चों। ये हमारा थर्ड ऑप्शन हो गया। फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा, ये हमारा बेंजीन है, ठीक है। यहाँ पे हमारा NO2 है, जो कि माइनस एम शो कर रहा है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक हमारा NO2 है, ये भी माइनस एम शो कर रहा है, और यहाँ पे हमारा CH2Cl है। देखिए बच्चों, देखिए बच्चों इसमें हमारा माइनस एम और माइनस आई दोनों शो कर रहा है, और ऑप्शन नंबर थर्ड में भी माइनस एम माइनस आई दोनों शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमारा सेकंड होगा, इसमें जो है ग्रुप जो है NO2 NO2 दोनों पास पास में है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस डोमिनेंट फैक्टर होगा, ठीक है। और फोर्थ वाले में भी NO2 NO2 दूर दूर है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हमारा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन फॉर्म करेगा, फर्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पहले लिख लीजिए। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन हमारा फर्स्ट बनाएगा, और फिर उसके बाद फोर्थ, उससे कम स्टेबल कार्बोकेटायन थर्ड, और सबसे कम स्टेबल कार्बोकेटायन हमारा सेकंड बनाएगा, ओके। ये हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन हो गया। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे इसमें सिर्फ देखिए माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है फर्स्ट वाले में, तो हमने फर्स्ट लिख लिया पहले। तो देखिए उसके बाद हमने फोर्थ लिखा, फोर्थ वाले में भी माइनस आई एंड माइनस एम शो कर रहा है, लेकिन जो ग्रुप है वो दूर दूर है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने फोर्थ लिख लिया इसलिए, फिर उसके बाद हमने थर्ड लिखा। थर्ड में भी देखिए ये ग्रुप यहाँ पर है और ये यहाँ पे, ये भी दूर दूर है ग्रुप, इसमें भी माइनस एम माइनस आई दोनों शो कर रहा है। फिर उसके बाद हमने थर्ड लिख लिया, लेकिन जो हमारा सेकेंड है इसमें डिस्टेंस डोमिनेंट है, इसमें जो ग्रुप है NO2 दोनों ही पास पास में है। ठीक है, तो उसके बाद हमने लिख दिया सेकेंड को। इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 मिनट बच्चों को लिख लेते हैं। सो द decreasing the decreasing order of reactivity decreasing order of reactivity of the given compounds toward SN2 reaction। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारा सेकेंड होगा। ठीक है, 5 मिनट कलर चेंज करके लिखते हैं, थोड़ा हाईलाइटेड रहेगा ना। सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारा सेकेंड होगा, सेकेंड कंपाउंड। उसके बाद थर्ड होगा, उससे कम रिएक्टिव फोर्थ होगा, और सबसे कम रिएक्टिव हमारा फर्स्ट होगा। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। ओके, या फिर आप बोल सकते हो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। So our right answer will be option number A is correct। ओके बच्चों, ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 रिएक्शन। ओके, और एग्जांपल नंबर 4 इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। हमें इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बताना है बच्चों। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए बोथ अल्कोहलिक KOH and NaNH2 in liquid ammonia in liquid NH3 are dehydrohalogenating reagents on comparative terms NaNH2 liquid ammonia liquid NH3 is stronger in action। ओके, देखिए बच्चों बोथ अल्कोहलिक KOH and NaNH2 in liquid ammonia are dehydrohalogenating reagents on comparative terms
NaNH2 और लिक्विड अमोनिया इज स्ट्रॉन्गर इन एक्शन। देखिए बच्चों, ये हमारा कंपाउंड क्वेश्चन में गिवन है। द रिएक्शन प्रोसीड एज। देखिए ये हमारा कंपाउंड क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। H2, यहाँ पे हमारा Br है और यहाँ पे एक Br, ठीक है। इसको जब हम पास करेंगे अल्कोहलिक QH से, ठीक है, तो क्या बनेगा? ये देखिए हमारा एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। CH2 CH, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक ब्रोमीन निकल जाएगा, ठीक है। फिर जब इसको हम NaNH2 लिक्विड अमोनिया से पास करेंगे, NaNH2 और लिक्विड अमोनिया, तो क्या बनेगा? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्डेड विथ CNA, ये हमारा कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, जब हमने इसको NaNH2 और लिक्विड अमोनिया से पास किया, ठीक है। अब देखिए जाके इसमें हमारा H+ ऐड होगा, ठीक है। यहाँ पे H+ ऐड होगा तो क्या बनेगा? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्डेड विथ CH, ओके। देखिए बच्चों, both alcoholic KOH and NaNH2 in liquid ammonia are dehydrohalogenating reagents, okay. On comparative terms, NaNH2 or liquid ammonia is stronger in action, okay। ये हमारा जो NaNH2 और लिक्विड अमोनिया है, ये स्ट्रॉन्गर इन एक्शन होगा इन कंपैरिजन टू KOH लिक्विड अमोनिया, ओके। यहाँ पे हमारा कंपाउंड ये क्वेश्चन में गिवन है, जब इसको हमने अल्कोहलिक QH से पास किया तो हमारा यहाँ से एक ब्रोमीन निकल गया, ठीक है, और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आ गया। इसको हमने NaNH2 लिक्विड अमोनिया से पास किया, ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम आके यहाँ अटैच हो गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ठीक है, और ब्रोमीन भी हमारा निकल गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड आ गया, फिर यहाँ पे H+ जाके ऐड हो गया, तो ये हमारा एल्काइन का फॉर्मेशन हो गया, ओके। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ओके। एल्काइन का फॉर्मेशन हो गया, ओके। और एग्जांपल नंबर 5 इज 1-methyl ethylene oxide when treated with an excess of HBr produces। देखिए जब हम 1-methyl ethylene ऑक्साइड को ट्रीट करते हैं विथ एक्सेस ऑफ HBr, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वही हमें बताना है, ठीक है। देखिए बच्चों, द गिवन reaction is completed as follows। देखिए ये हमारा जो कंपाउंड है 1-methyl ethylene ऑक्साइड, ठीक है, इसको हम एक्सेस ऑफ HBr पास करेंगे, ठीक है।
देखिए H प्लस फ्रॉम HBr, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2। ओके, ऑक्सीजन पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक हमारा हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। ठीक है, और फिर इससे हमारा ब्रोमीन अटैच होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, CH3, यहाँ पे हमारा ब्रोमीन अटैच हो गया Br। ओके, यहाँ पे हमारा CH2 और OH हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, ये हमारा ये बॉन्ड बॉन्ड ब्रेक हुआ। ठीक है, और ये हमारा OH यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट हो गया CH2 के साथ, और जाके हमारा यहाँ पे जब ये हटा, यहाँ पे कार्बोकेटायन आ गया। ठीक है, यहाँ पे जाके हमारा ब्रोमीन क्या हो गया, अटैक कर दिया। ठीक है, तो हमारा कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना। इसको फिर हम HBr से पास करेंगे, HBr। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये जो हमारा OH है ये निकल जाएगा, इसके जगह हमारा ब्रोमीन जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट हमारा ऐसा बनेगा, CH3CH, यहाँ पे हमारा Br ब्रोमीन अटैच है। ठीक है, यहाँ पे हमारा CH2Br। ओके, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, तो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके बच्चों, जब हमारा 1 मेथाइल एथिलीन ऑक्साइड को हम ट्रीट करेंगे विथ एक्सेस ऑफ HBr, तो हमारा कुछ ये कंपाउंड बना। ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 6 इज इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, हमें इस क्वेश्चन में मेजर प्रोडक्ट C फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए इस रिएक्शन को हम प्रोसीड करते हैं। देखिए बच्चों, हमें ये कंपाउंड गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, CH3 यहाँ पे अटैच है, और यहाँ पे हमारा NH2। ओके, इसको हम पास करेंगे NaNO2 प्लस HCl at 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, Cu2Cl2 डायोटाइजेशन रिएक्शन। ओके, डायोटाइजेशन रिएक्शन, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा जब इससे पास करोगे आप, यहाँ से हमारा हाइड्रोजन निकल गया। ठीक है, कुछ हमारा ऐसा कंपाउंड बन गया। ओके, और जब इसको आप पास करोगे Cu2Cl2 से, ठीक है, तो ये जो है हमारा निकल जाएगा, और इसकी जगह हमारा क्लोरीन आके अटैच हो जाएगा। ठीक है बच्चों, Cl और यहाँ पे CH3, और इसको जब हम पास करेंगे इसके प्रेजेंट में Cl2H के प्रेजेंट में, तो हमारा क्या बनेगा, कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा। ठीक है,
इसमें देखिए, इसमें ये एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया और यहाँ पे जाके हमारा क्लोरीन क्या हुआ, अटैच हो गया। ठीक है, और इसको जब आप पास करोगे, ये हमारा वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? वुड्स रिएक्शन हमारा सोडियम एथर के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो कुछ हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ये हमारा बेंजीन है। ठीक है, इससे अटैच यहाँ हमारा क्लोरीन है, और यहाँ हमारा टू CH2, और ये बेंजीन है। ठीक है बच्चों, और इससे हमारा यहाँ क्लोरीन अटैच है। ठीक है, यहाँ से हमारा क्लोरीन निकल गया। ठीक है, और ये दो उस रिएक्शन हम जानते ही है। ठीक है, तो यहाँ से जाके ये अटैच हो गया। ठीक, उस रिएक्शन आप जानते होंगे। देखिए, जब हम एल्किल हैलाइड को इन प्रेजेंस ऑफ हम सोडियम एथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो क्या प्रोडक्ट बनता है? एल्केन। ओके, तो सिमिलरली हमने यहाँ पे भी वही किया है। ठीक है बच्चों, ये हमारा देखिए, ये कंपाउंड ए बना है हमारा। ठीक है, और ये कंपाउंड बी है, एंड दिस इज आवर कंपाउंड सी। ओके, दिस इज आवर कंपाउंड सी। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? कंपाउंड सी, मेजर प्रोडक्ट सी, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके बच्चों, मेजर प्रोडक्ट हमारा ये बन गया, मेजर प्रोडक्ट। ओके।